Akka, vanakkam. Thank you, Tamil. Thank you, Dubai. How are you? Sir, Isaac Krishna, how are you, sir? Krishna, So, He's working and he's on the. okay. Hi. Rakshana ji, how are you? Good, thank you. Please welcome the stars of the hour. Yes. Yeah, definitely. There you go. Vanakkam, vanakkam Wow. Chitraka, vanakkam Priya, and vanakkam Dinesh ji. Good evening. Vanakkam. Hi, how are you all? Wow. Good. Good. Yeah, good. Yeah. Today, we have our participants here, who have also done some kind of activities, performed some kind of activities. Wherein to start with, we have Priya, Chitra, Ruhi, Aarti, and me, wherein a few of us, we have come up with a video wherein, for example, Priya, she have dressed up and showing emotion as if she is Disha, and she is trying to convey a message to the society. Wow. So if you want, I guess Priya is online here. So meanwhile, let Priya start. I will be sharing the video here, so that it will be good if we can get it executed or showed in the live, so that everyone will be able to view it and what type of message she is trying to give to the public. Dinesh ji, Shukriya, I have the video, sir, downloaded here. Whenever you want, I can play. So you just tell me and I can play, sir. I feel we should start with the video, because when you see that video, you can see what we are here for. I don't think after that I can talk, so I'm just going to say thank you to all of you guys once again. One second, I'm playing it. Okay, let's see. I'll put the volume right now. Okay. So thank you for your patience. Sharing the screen. Guys, fair warning to anybody who is watching. This video is horrific and just like how reality is. So. Rakshana ji, okay. My life is over. I was murdered. I was thrown out of the building. I fainted at me. I shouted to leave me. He was standing looking at me. No one could save me. In Mahabharata, Kanna was there to save. Mommy, no one was there to save. Last I was murdered. I know you can't save me. Oh, please, I request you, all join your hands and cry for me. Give me justice. All I want is justice. Please consider me as your sister. Fight for me. I want justice. I want justice. I'll play this once again. I think a lot of people from Dinesh Kumarji's team is trying to join. I will exit. Tamil and maybe Tamil can say. I and Isaac will exit. So let them come in. Thank you. We can all come Priya, back. Yeah. Priya, Thank you. I will speak to you later, Priya. Okay. See you. Wow. Okay. So please continue, Tanya ji, if you want a message. Yes, I'm here to thank the Delhi SSRN team ground protesters. They are our real protesters. Frankly speaking, we are sitting just on our laptops and protesting, but they are doing
the real hard work. Thank you so much, Dinesh ji, and all your team members. And Priya, thank you for the lovely enact that you have done. It has really touched our hearts. And your activities that you all are doing is marvelous. I have no words to express. We will be giving you, Dinesh ji, with your team, a slot every day as promised by Varun. So we will discuss it offline, whatever time suits you or us, where the slot is empty. Please be free, all of you, to come at that time. Just a matter of few days more. Let the stream go on till the 14th with all your love and your cooperation. And I also want to thank Dinesh ji once again that he has offered his help to make our flyers and whatever he can do from the background. So thank you so much, Dinesh ji. And that's all I have to say. And I'll give now the opportunity to somebody else to talk. Thank you. The pleasure is mine, Tanya ji. And also, this we are doing for SSR. So SSR Bhai is the one who have like ignited this fire in us, to wherein I'm sure like prior to joining SSR movement, I was not a kind of guy who will be ready to lend his hand to everyone. But I don't know what, since I joined this movement, it have become a habit to like to lend a hand to anyone who is in need. It's not just about any particular importance or so. It have become a habit like अगर किसी को भी कुछ चाहिए तो like वेट क्यों करना, अगर जब दिल में है सुशांत तो आते हैं ना आगे, हम भी आगे आके मदद करते हैं ना, उसमें क्या है. So ये वाली भावना जागृत हो चुकी है अब दिल में. बहुत अच्छा. ये भावना मुझे लगता है हर इंसान के लिए होनी चाहिए. जिसको need hai, we must come forward, because Sushant has shown us the way, and now it should be this way. Anybody who is in need, honestly. Thank you, Dinesh ji. You are mute. Sorry. Yeah, मतलब thanks to SSR भाई, उन्हीं के वजह से है ये सब. I would invite somebody else from your team to speak if they like to. Yes, absolutely. Yes, ji, carry on, Dinesh ji. Yes, everybody go in round robin and speak. Yeah, please. Rudraba, Ruhi, Chitralekha, Priya, please. The platform is yours for the next 1 hour. Please speak. So, to start with, Namaste, as it is all of Ladies' Day, let's go with Priya ji. Namaste, all of you. Sat Shri Akal. Thank you for giving me this opportunity to do it. And we are headed towards 1 year for Disha. So from my part, I have to do something for her. So she is also a girl of Bharat Mata. And I never knew what I'm going to do. But when I started this kit, I really felt what Disha's mind would have been during the time of murder. So that is the thing I have depicted here. But actually, while playing the video, the audio was very low, so that I think many of them can't hear it. But I as a Bharat Mata ki beti, I'll tell all of them, please save girl child. And if you come across any Disha or someone who's going to get into this incident, please save them. So मैं हाथ जोड़ के अब सबको नमस्कार करता हूँ. Save humanity. So save her. That's it. While I was doing this kit, I put myself as Disha, and I was wondering what would have went into her mind. She would have had lot of dreams. She would have thought to fly. She would have thought to marry. She would have had so many dreams, but all her dreams are shattered. So let this be the last Disha. Let us join together to safeguard, and we will take an oath that we will not allow any Dishas for this end. Yes, Priya Kuti, you are so
emotional. Yeah, as being an artist, I can see your performance. So beautiful, amazing, touched everyone's heart. And our Tamil historians feeling so proud of you. And yes, I can feel your pain, what you're going through. And the act you did was amazing, beautiful, and much love to you. Sure, our peoples know who's Priya from Tamil historians. You made Tamil historians so proud, and we love you always. Thanks, Anna. Thank you so much. And Dineshi, shall I continue with the poetry or? Yes, absolutely. First, you start with poem. Following this skit, I'd love to read out the poetry which I did yesterday, which was cut due to internet connection, and followed by that, I'll continue my next poetry. Can I? Hello. Yes, go ahead. Yeah. தந்தைக்கு நற்சேயாய், தாய்க்கு நல் மகளாய், ஆசிரியருக்கு நல் மாணவியாய், தோழியருக்கு நல் தோழியாய், சுற்றும் பட்டாம் பூச்சியாய் பறந்திட நினைத்தாயோ? கயவர்கள் உன் சிறகினை உடைத்தனரும். வண்ண மலராய் வலம் வர நினைத்தாயோ? உன்னை காலில் இட்டு நசுக்கினரோ? திருமணம் எனும் பந்தத்தில் அன்பு கணவருடன் இணைந்து 100 ஆண்டு வாழ நினைத்தாயோ? உன் கனவுகளை எல்லாம் கனவாக்கி விட்டனரோ? தீயாய் ஜொலிக்க நினைத்தாயோ? உன் சடலத்திற்கே தீயிட்டனரோ? திஷா, நிச்சயம் உனக்கு சொர்க்கம்தான். காரணம், நரகத்தை இங்கேயே அனுபவித்து விட்டாய். வாழ்க நின் தியாகம். Awesome. Yes, beautiful, Priya, beautiful. Actually, this is more strength, more plus point of Priya. She used to write more like this, and she used to present a lot in Tamil as well as in English. She is a much talented girl, and yes, she is fighting from bottom of our heart. Sure, we will get us justice soon. And Priya, once again, much love from us. Yes, which others can speak. Chitraka, yes, you're in mute. Hello, I think I can. You can hear me. Yeah, bro, I have another poetry which I wrote today. So that is after the skit, performance of skit. Okay, Priya, carry on. Yeah, thank you. என்னை கொன்ற கயவர்களே, நினைக்கவில்லையோ உங்களை பெற்றவளும் ஒரு பெண் என்று. Priya, not audible. Priya, you're in mute. Priya, you're in mute. Hello. Carry on. Done. Yeah. One sec. என்னை கொன்ற கயவர்களே, நினைக்கவில்லையோ உங்களை பெற்றவளும் ஒரு பெண் என்று. என்னை கொல்லும் போது உன் சகோதரியின் உருவம் வரவில்லையோ? என்னை தொடும்போது உன் தாயை தொட்ட உணர்வு வரவில்லையோ? மூடர்களே, என் சேலையை உருவும் போது உன் தாயின் சேலையை தொட்டிலிட்டு தூங்கிய ஞாபகம் வரவில்லையா? என்னை மாடியிலிருந்து தள்ளும் போது உன் வீட்டிலும் ஒரு பெண்ணுண்டு என்பதை மறந்தாயா? ஒரு திஷா இறந்தால் என்ன, 1000 திஷாக்களாக பிறப்பெடுப்பேன். ஒவ்வொரு திஷாவையும் பாதுகாப்பேன். பெற்றோர்களே, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள். ஒவ்வொரு ஆணும் ஒவ்வொரு பெண்ணை தன் தங்கையாக நினைக்கட்டும் என்று. That's all. Yeah, beautiful. Yes, well said. Actually, this is the truth. Beautiful. You are speaking from the bottom of your heart.
That's so beautiful and amazing, Priya. Yes, viewers are sharing. I would request Dinesh ji to translate in English. Yeah, sure. Go ahead, Dinesh ji. Yeah, definitely. I'll be happy to do that. Before that, if you don't mind, I want to inform you that we have Rudra here. Actually, he was in the middle of his meeting, but he came here for to like give his few minutes here. So if viewers and Priya don't mind, can we allow Rudra to speak for a few minutes before he leaves? No, Yeah, it's yeah, okay. yeah. Go ahead. Go. Yeah, fine. Thank you, Tanil. Yeah, thank you so much for having me, and I'm really grateful to all of you, all of the Assarians. So, first of all, I would love to ask the viewers that what they want to they want to listen, you can say, or even they want to know, because I'm damn positive. I don't know. I know many of people are like emotional, getting emotional. Many are feeling very low. So, but rather, I am feeling very positive, and getting very positive vibes that definitely we are going to win this mission, win this battle of justice. So if somebody wants to ask anything, feel free to ask. I would love to answer with as much transparency and honesty as much I can. So yeah, if somebody wants to ask something, if that will be great. Please. Or even after that, I would love to sing a song if that will be allowed in this platform. So yeah, I will do that too. Rudraba, I just want to thank you because you are the foot soldier. You are one of the original foot soldiers who has actually worked, not just used words, but actually action. You have actually spoken through your feet. So we want you to talk more about that, how you have approached the authorities. You're not just you're not just talking, you're actually walking the talk. So can you please explain how you're converting all your activism into actions? And please, of course, you can sing. Varun is taking a break just now because he fell asleep in the chair itself. So we just pushed him away. So please consider this. Thank you. Thank you so much, please. Yeah. So first of all, if you don't mind, shall I continue the same in Hindi, because I guess most of the people here are also comfortable in Hindi. So I want that everyone, actually in English everyone will understand, but if somebody wants that I continue in Hindi, so I will do that also. Sure, so first of all, I want to know. Yeah, it's all about your convenience. Okay, fine. Yeah. Okay, awesome. So ये बात शुरू होती है 2013 से, जब मैं पहली बार सुशांत जी से मिला था रेडियो मिर्ची पे. And that was like I was unaware of him. Like of course वो 2013 में काय पोचे मूवी आई हुई थी, and वो एक क्या कहते हैं रेडियो मिर्ची ने चलाया हुआ था कपल्स के लिए कॉन्टेस्ट. तो मुझे सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था. वो मूवी काय पोचे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना था उस टाइम पे. तो वो मैं जीता फॉर्चुनेटली, और वहां से सुशांत जी को जाना मैंने, उनकी मूवी उनके काम को भी जाना, और वहां से वो चीज एक उनकी मूवीज को देखता रहा. और सबसे बड़ी चीज है कि एक वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया में पोस्ट करते थे और जो चीजें रखते थे वो अलग ही लेवल का होता था, जो कि हम इन जनरल वरुण धवन या जो भी मैं नाम लेके बोल रहा हूँ और भी बॉलीवुड एक्टर्स लेते हैं, सलमान खान, आमिर खान, व्हाटसएवर, तो वो जस्ट एक बॉलीवुड लाइफ को दिखाते हैं, विच इज आई एम नॉट गोइंग टू से कि उसमें मैं जज करूं. बट अगर मैं सुशांत सर की बात करूं तो एक फिलोसॉफिकल अप्रोच रखते थे. ये सारी चीज बड़ा जो है क्या कहता है आईआईटी बॉम्बे का उनका लेक्चर सुना तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा. सारी चीजें लाइफ में अच्छी चल रही थी, और मेरा जो काम था उसमें ऑफ कोर्स समाज के लिए जो बन पड़ता था वो एकदम, या तो कह लीजिए एकदम बिहाइंड द सीन होके, या ऐसे में काम करता था. लाइक कभी सामने आके वो समाज सेवा वाले काम को नहीं करता था, जो जिसमें कि जो भी चीजें अभी हो रही हैं ग्राउंड, जो भी सारी चीजें हैं. और अगर मैं बात करूं 14 तारीख की, तो पहली बार जब ये न्यूज मुझे पता चला अगेन सोशल मीडिया में, तो मुझे लगा ये फेक न्यूज जो प्रोपोगेट हो रहा है. और उसके पहले बता दूं, ये 14 तारीख मेरे लिए सबसे बुरा दिन ऐसे भी था कि कोरोना वायरस, और अपने मौसी जी को भी खोया था ड्यू टू कोरोना वायरस. एंड वो
दिन ही मेरा बहुत खराब था, हम सभी के लिए एक्चुअली था। फिर जब ये न्यूज पता चला तो आई वाज श्योर कि ये फेक न्यूज है, बट जब मैंने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल में देखने के लिए तो आई वाज रियली शॉक्ड। और पता नहीं क्या कनेक्शन था कि क्या था, उसके बाद ऐसा फील हुआ कि एज इफ अपना कोई गया है, मतलब अपने लाइफ से अपना कोई इंसान जो है गया है। एंड उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, लाइक फॉर फ्यू आवर्स या वो उस दिन की मैं पूरी बात करूं कि समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद नेपोटिज्म में भी कारण हो, क्योंकि लोग नेपोटिज्म नेपोटिज्म चिल्ला रहे थे। बट क्रेडिट गोज टू ऑल दोस वंडरफुल पीपल। सबसे पहले मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा जिन्होंने इंस्टाग्राम में, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरे लिए वो एपी सेंटर था, मैं ट्विटर में बाद में इस चीज में जुड़ा था। तो इंस्टाग्राम में जब मैंने देखा कि लोग फाइंडिंग्स उसी दिन से डालने लगे, और तब पता चला कि 15 जून से श्योर होने लगा कि नहीं ये जो है ये सुसाइड तो नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यही चीज मम्मी पापा को बोला कि आउटकम इसका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लड़ रहे थे तो जब पता चला था कि बड़े बड़े लोग भी है, तो मम्मी पापा ने बस इतना ही बोला, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फैमिली। सो फैमिली मतलब हाँ एक मलौता ही बारिश से सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने बोला एक बार ठान लिए हो, उतर गए हो तो जीत के ही आना, चाहे कोई भी आउटकम हो हमें मंजूर है। तो सबसे बड़ी चीज होता है जब आपके पास फैमिली का सपोर्ट हो ना, क्योंकि जो मेरे पास सपोर्ट है दैट्स अनदर थिंग, लेकिन सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है फैमिली की सपोर्ट। तो पीछे जब आपके पीछे फैमिली खड़ी हो कि कम वॉट में हम आपके साथ है, आप करो, आप आगे बढ़ो, उससे बड़ा पावरफुल चीज कुछ होता नहीं है। एंड क्रेडिट गोज टू होम। आज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, एंड एसेसारियंस, हो सकता है तादाद पहले से जो संख्या है वो कम हुई है, बट रियल एसेसारियंस, रियल बड़ा ही एक सब्जेक्टिव टर्म है जिसमें हर किसी का अलग कंटेक्स्ट है। मेरे कंटेक्स्ट में रियल कौन है, अगेन बहुत सी लिमिटेशंस होती है। मैं समझता हूँ कि ग्राउंड में उतर के करना भी अपने आप में एक चीज होती है, उसमें बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे कंस्ट्रेंट के कारण ग्राउंड में नहीं उतर सकते। वी मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट एंड एक्नॉलेज दैट। बहुत से लोग इतने हेजिटेंट होते हैं जो लाइफ में कभी किसी से बात नहीं किए होंगे, लेकिन इस कैंपेन के लिए ट्विटर में बकायदे टैग करके ऑथोरिटीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट वाली चीज है। तो 1 साल से जो ऑलमोस्ट लगातार आज भी निरंतर आवाज उठाए जा रहे हैं, मेरे कंटेक्स्ट में मेरे हिसाब से रियल का कंटेक्स्ट वो है, वो रियल एसेसारियंस है, जो मतलब बिना थके बिना झुके अभी भी आवाज उठाए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है। दूसरा, हर किसी को कोई ना कोई इंस्पायर करता है। मेरे को कौन इंस्पायर करता है? ऑफ कोर्स सुशांत सर तो है, एपी सेंटर सब कुछ है। आप लोग कौन? आप लोग जो लोग 1 साल से, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूं या ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं एसेसारियंस की, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी। फॉरगेट अबाउट द फेम। फेम से क्या होगा? कुछ नहीं। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जा रहे हैं तो एक दिन की फेम है, आज है कल नहीं रहेगी। तो इट्स नॉट फेम, इट्स नॉट मनी, देन इट इज व्हाट? जो उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, ठीक है, उसमें से कितने लोग आके रोए धोए, 1-2 दिन 1 महीना रोए धोए, उसके बाद फिर से वो सारी चीजें नाच गा रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ है, वो खुश रहे। बट हम तो उनके ना ब्लड रिलेशन में, ना उनके एकदम सगे मित्र हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग, स्टिल वी आर ट्राइंग, वी आर डूइंग गिविंग आवर बेस्ट। सो ये आप ही लोग हैं जो मोटिवेशन है, कि जिसमें कि मुझे वो डर नहीं लगता। एक फियर फैक्टर होता है, पता है, इंसान कई बार होता है कि डरते डरते उनके अंदर का डर खत्म हो जाता है। तो ये आप ही लोग हैं जो मेरे जैसे और भी एसेसारियंस हैं, उनके अंदर का वो डर खत्म कर दिया है कि अभी हमें वो फर्क नहीं पड़ता कि क्या आउटकम होगा, क्योंकि वी आर स्टबर्न, वी आर डिटरमाइंड। और सबसे बड़ी चीज, मैं अपने फैमिली को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कहते हैं बेटा कुछ भी होगा आउटकम, कुछ भी मतलब एडवर्स चीज के लिए तैयार है, मतलब समझ लीजिए कि कुछ भी आउटकम वी आर रेडी फॉर इट। तो इसीलिए एक फैमिली का सपोर्ट होना और आप जैसे एसेसारियंस का सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। वहीं से शक्ति मिलती है कि हम नीडर होके बिना आउटकम की चिंता किए, लॉफुली ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे सर में ये भी एक चीज है कि हमें लेगेसी को मेंटेन करना है। सुशांत जी के ऊंच नीच कई बार इंसान से हो जाती है, लेकिन वी मस्ट ट्राई लेवल बेस्ड तरीके से कि जितना हो सके लेगेसी को मेंटेन करें सुशांत जी के। तो लॉफुल तरीके से लड़ते रहें। और जितना मैंने अथॉरिटीज को जाना है, जो भी कुछ जाना है, पता नहीं लोग क्यों डरते हैं, लेकिन मेरा ये मानना, अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं और आप थोड़ा भी कानून को जानते हैं, आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट बट एक जनरल हिसाब से कह रहा हूं, तो डरने की कोई बात नहीं है। सीबीआई आपके लिए है, पुलिस आपके लिए है, अथॉरिटीज आपके लिए। तो यहाँ पे मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पुलिस, मैं पुलिस में ही बात करूं, जब मैं हम लोग पहली बार जो प्रोटेस्ट किए थे सीबीआई के सामने, मैंने ये बात भी पहले बोली थी, आज भी बोला हूं, पता है वहां के पुलिस जो वहां पे बैरियर लगा के खड़े थे, दैट्स देयर जॉब, देयर वर्क।
बट उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि सुशांत हमारे बेटे जैसा भी है। जी हाँ, उन्होंने ये बोला हुआ था, जिस दिन सुशांत जी को न्याय मिलेगा, सुशांत बेटे को, ये वर्ड यूज किया था, बेटे को न्याय मिलेगा, हम बल्कि आपको मिठाई खिलाएंगे। तो मैं वैसे पुलिस ऑफिसर्स को भी, सीबीआई ऑफिसर्स को भी, और भी अथॉरिटीज को भी सहृदय प्रणाम करता हूं। तो ये सारे लोग मिलकर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, फिर डर नहीं रहता है, हेजिटेशन नहीं रहता, फिर एक ही चीज रहता है, हमें जीतना है। अब एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है यहाँ पे सभी से कि इमोशन अपनी जगह है, इमोशनल होकर लड़ना अपनी जगह है। एक सैनिक जो होता है, आर्मी जो होता है, सोल्जर जो होता है, सॉरी, तो वो भी देश के लिए लड़ता है, वो भी एक इमोशन है। बट अभी तक हम इमोशन के लेवल पे थे, अब हमें उस इमोशन के साथ साथ लॉजिकल और टेक्निकल ग्राउंड में भी खेलना है। क्योंकि जिसने भी किसी लड़की का, बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन किसी भी लड़की के जानवरों वाली हरकत में कहता हूं, ठीक है, जानवरों वाली हरकत किया है, आप क्या सोच रहे हैं? ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम समझ जाएंगे, पिघल जाएंगे? नॉट एट ऑल। क्रिमिनल जो उनके लेवल पे उतर के काम कर नहीं सकते, बिकॉज वो हमारे जो भी हमने सीखा है उसके खिलाफ है, जो हमारी एक सीख मिली हुई है परिवार में, जिस तरीके से हम लोगों ने रहे हैं, मतलब एक सिविलाइज्ड अगर बात करें तो हमारे खिलाफ है। तो हमें क्या है, इमोशन अपने जगह पे है, पेशेंस तो रखना है, जरूरत पड़ी ग्राउंड में उतरना है, लॉ को तो फॉलो करना है, जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। क्योंकि एक बात मैं लिख के दे रहा हूं, सुशांत जी को अगर न्याय नहीं मिल सकता, बार कुछ नहीं है। नो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अपने कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास है, बट इमोशन अपनी जगह पे है, ग्राउंड में उतर के सभी को लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे रुद्रबा नहीं है, रुद्रबा एक एसएसआरियन है। यहाँ पे जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, टीम एसएसआर फॉरएवर भी है, रचना मैम भी, सभी लोग हैं, तो आप सभी एसएसआरियन हैं, और जरूरत पड़ेगी तो सबके अंदर एक शिवा सो रहा है, सबके अंदर एक माँ क्या कहते हैं, दुर्गा सो रही है, उसको जागृत करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा सामने। क्योंकि ये जान लीजिए, आज सुशांत जी थे, कल आपके घर का सदस्य होगा, आपका बेटा बेटी भाई बहन हो सकता है। वेट नहीं करना है, वेट नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसलिए भी मैं कर पाता हूं क्योंकि मैं जो मेरे जैसे यंगस्टर है, मैं उनको भी कहूंगा कि मेरे पास लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस बहुत कम है। घर में क्या है, मम्मी पापा, ना भाई बहन, ठीक है, ना मेरी शादी हुई, ना कुछ, तो ऑब्लिगेशंस बहुत ही कम है। तो जिनके पास भी ऐसी ऑब्लिगेशंस कम है, तो किस बात का डर, किस बात का डर? जियो तो ऐसे जियो कि अगर मान लो भगवान ना करे कुछ हो भी जाए तो लोग आपको याद रखे। सुशांत जी क्या कभी मरने वाले नहीं, वो अमर हैं, ही इज इमॉर्टल। काम ऐसा होना चाहिए। तो जो लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे या उतर नहीं रहे, तो मैं कहूंगा ठीक है, आपका डर को मैं समझ सकता हूं, आई एम कंसिडरेट एंड कंपैशनेट अबाउट द सेम, बट उसको अब तोड़ना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं है, आपके ऊपर इतना कुछ नहीं है प्रॉब्लम, तो उतरिए। क्योंकि ऐसे पल पल जो इस तरीके से घुट घुट के जीना भी एक तरह का मरना है। तो इट इज द टाइम कि वो वॉरियर मोड ऑन करें, ऑफकोर्स लॉ को फॉलो करना है, और एक हिस्ट्री क्रिएट करें कि लोगों को पता चले कि जब जब अधर्म होगा तो भगवान पता नहीं कैसे उतरते होंगे। ऑफकोर्स मैं आस्तिक हूं, मैं भगवान पे श्रद्धा रखता हूं, बट भगवान हमारे द्वारा ही हमसे काम करे, जो हमारे सबके अंदर है, उसको जागृत करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, वेट मत कीजिए, कल को रो रहे होंगे क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। तो 1% भी अगर प्यार सच्चा है, बिल्कुल भी हेजिटेंट मत होइए। पुलिस ऑफिसर आपके मदद के लिए है, अथॉरिटीज आपके मदद के लिए है, हम प्रधानमंत्री वगैरह सब कुछ। तो मेन राजा कौन? हम। सबसे पहले ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, लेकिन उसके बाद अगर कोई राजा तो हमसे नेता है, नेता से हम नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये मोड आपको ऑन करना पड़ेगा। इम्पेशेंट मत होइए। आप ये भी सोचिए सीबीआई के ऊपर कितनी प्रेशर हो सकती होगी। आप लोगों को एक तरफ तो ये पता है ना कि कितने बड़े बड़े लोग पॉसिबली इन्वॉल्व हो सकते होंगे इस केस में। तो फिर क्या आप, अगर आप सोचिए, बहुत से लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, वो चाह रहे थे कि 3 महीने में ही 302 लग जाए। आई एम नॉट सेइंग कि डिले हो,
बट ये भी आप सोचो कि अगर एनसीबी के साथ जैसे बीच में हुआ था कि बेल मिल गया था, भगवान ना करे अगर सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है, लेट्स से किसी को बेलती है या कुछ, वो हमें एक्सेप्ट होगा? डेफिनेटली नॉट। तो ठीक है, टाइम लगे, बट मैं कहता हूं न्याय 2 लोग दिलवाएगा, एक सीबीआई सुप्रीम कोर्ट और एक हो गए हम। क्या हमने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है बॉलीवुड को? पहला क्वेश्चन। क्या हमने ये इंश्योर किया है जो भी गलत काम उसके इर्द गिर्द मतलब पेरिफेरल में हो रहा है वो जड़ से खत्म हो जाए? क्या हम अपने काम को ईमानदारी से ऑनेस्टली कर रहे हैं? अगर जवाब है हाँ तो गुड, और नहीं तो ये हिपोक्रेसी है कि हम तो अपने तरफ से प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि सीबीआई काम करे, वी आर एक्सपेक्टिंग मिनिस्टर्स काम करे, वी आर एक्सपेक्टिंग ऑथोरिटीज काम करे। नहीं होने वाला है अगर हम हिपोक्रेट्स बन के रहेंगे तो इसीलिए वॉरियर मोड 2.0 ऑन करने का समय आ गया है। करो, अपने लिए करो, स्वार्थी बनो, क्योंकि अपने लिए स्वार्थी अगर बनोगे ना कि नहीं मेरे बच्चों के पास ना हो ये सारी चीज, या मेरी बेटी मेरी बहन के साथ ना हो, मेरे घर में मेरे साथ ना हो, स्वार्थी बनोगे इस कैंपेन में अपने आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये चीज है। तो ग्राउंड में उतरना, फिर आपको लगेगा कि इट्स लाइक, जैसे साइंस में एक टर्म होता है इनवॉलंटरी एक्शन, कि जो अपने आप हो जाता है। इनवॉलंटरी एक्शन में क्या होता है, हमें सोचना नहीं होता है, अपने आप हो जाता है। तो ग्राउंड में उतरना, ऑथोरिटीज से बात करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, वो इनवॉलंटरी एक्शन हो जाएगा। ऑफ कोर्स हर्डल आएंगी, वो अच्छे से इंट्रोगेट करते हैं, कोई नहीं, वो भी फेस कर लेंगे। समझ में बात को? तो बस इतनी सी बात थी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे मौका दिया पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, एंड बस इतनी सी बात कहनी मुझे। आपने तो हिला डाला भाई एक्चुअली। लेकिन जो वर्ड्स आपने बोले हैं, जो चीजें आपने बोली है, वो रियली बहुत 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 वैलिड चीज है। हम रियली क्या कर रहे हैं? क्या हम, जब हम दूसरों को बोल रहे हैं कि लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग जस्टिस, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, वी वांट दिस पर्सन, दिस एजेंसी टू डू दिस वर्क और दैट वर्क, लेकिन इन रियलिटी में हम क्या हम भी अपने साइड से कर रहे हैं? जो बीइंग एन एसएसआरियन, और एसएसआरियन तो हम लोग अब बने हैं, बट स्टिल बीइंग एन लाइक अ वॉरियर, कि जो अपने अराउंड या अपने ऊपर हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ कुछ बोलते हैं या बोल सकते हैं? आंसर इज नो। जैसे अभी आपने बोला कि लाइक क्या हमने अभी तक बॉलीवुड को बॉयकॉट किया? मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अभी भी फॉर एग्जाम्पल आई गेस जिस दिन हम लोग आके कौन सा पार्क था, सेंट्रल पार्क में जब हम प्रोटेस्ट करने गए थे, उस दिन याद है ना, लाइक वहां पे कितने लोग थे जो इवन बोल रहे थे कि सुशांत भाई का मर्डर हुआ है। अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो लाइक सुसाइड। तो ये चीज एक ऐसी चीज थी जो दिखाता है कि लेट इट बी मीडिया, लेट इट बी लाइक वी, इवन वी एसएसआरियंस, वी हमने भी अपना पूरा पूरा रोल नहीं निभाया है टू अवेयर द पीपल, टू स्प्रेड वर्ड्स अक्रॉस द पीपल। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे हैं कि लाइक जो कि लाजवाब काम करते हैं, लाजवाब तरीके से लाइक करते हैं, लाजवाब तरीके से लोगों को एसएसआर की चीजें बताते हैं। पर बहुत ऐसे भी हैं जो अभी भी डर तो नहीं कहूंगा, शाइनेस के मारे और थोड़े उनके काइंड ऑफ इंफेरिटी के कारण वो लोग खुल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपनी चीजों को बाहर नहीं रख पा रहे हैं। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन या मेरा कंसर्न ये है कि क्यों अभी भी हम लोग साइलेंट है, क्यों अभी भी हम लोग शाई फील कर रहे हैं? क्योंकि यार ये ही टाइम था जब कुछ किया जा सकता है। बिकॉज एसएसआर भाई के साथ के जो एसएसआरियंस बोल के, जो वॉरियर्स बोल के जितने लोग जुड़े हैं, जितनी पब्लिक जुड़ी है, आज तक वो चीज कभी नहीं हुई हिस्ट्री में। और जब ऐसी चीज हो चुकी है तो आओ ना अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और ये करने से आई एम वेरी श्योर कि ये वाला जो चांस है ये शायद दोबारा नहीं मिलेगा हमारे को। तो क्या पता आपके अंदर वो प्रेरणा है कुछ करने की, लेकिन शायद आपको वो चांस नहीं मिल पाएगा इस टाइम को यूटिलाइज करने का। तो हमारे को अपने साइड से आना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ, मैं 4 जून तो नहीं कहूंगा, सॉरी 14 जून तो नहीं कहूंगा,
लेकिन शायद एंड ऑफ द जून से लास्ट ईयर मैंने भी कंप्लीटली बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रखा है। मैं अपने घर पे इवन मेरी मम्मी को, अगर मम्मी मेरी मूवी देख रही होती है कोई, तो मैं अपनी मम्मी को क्वेश्चन करता हूँ कि मम्मी आप ये मूवी क्यों देख रही हो। मम्मी बोलती है मैं इस पर्सन के लिए देख रही हूँ। तो अगर लाइक बहुत बार होता है कि मैं जब उनको उन लोगों के बारे में बताता हूँ, तो मम्मी का लाइक टीवी, या तो लाइक मम्मी सीरियल्स में चली जाती हैं कि कोई टेली सीरियल देख ले, या फिर अब आके उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि लाइक अब वो भी आके पसंद नहीं करती इन बॉलीवुड के जो गलत लोग हैं। सभी लोगों को नहीं, बॉलीवुड में भी काफी टैलेंटेड लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, लेकिन जो गलत लोग हैं, जिन्होंने आके जो गलत चीजें कर रहे हैं और जिन्होंने लोगों को, पब्लिक को, जनरेशन को गलत मैसेजेस दिए हैं, वैसे वाले लोगों को हमारे को बिल्कुल बॉयकॉट करना होगा, हमारे को बिल्कुल दूर करना होगा। हम काम करेंगे, हमारे को देख के दूसरे भी वो चीजें, उन चीजों में उतरेंगे, एंड डेफिनेटली चीजें बदलेंगी और बदलाव आएगा। और यही सही समय है बदलाव को अपनाने का और बदलाव को लेके आने का। जी। shall I add one more thing? हाँ, एक मिनट, क्या मैं और एक चीज ऐड करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये आप ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा एक्शनेबल इनपुट देने में विश्वास रखता हूँ। तो एक्शन, और दिनेश भाई ने एकदम बहुत सही बोला है, बहुत ही, आप अगर इस बात को समझ गए तो आधा काम तो ऐसे हो जाएगा। अब एक्शनेबल इनपुट ये है, लोग कई बार इसलिए भी हेजिटेंट होते हैं क्योंकि इग्नोरेंस सबसे बड़ा वीकनेस होता है कई बार, और अगर नॉलेज आ जाए तो उससे बड़ा वेपन कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए भी हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि वो वेपन, जो नॉलेज है, उसको हम वेपन की तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब एग्जैक्टली कैसे? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हर चीज, जो सिस्टम है, कुछ रूल बुक से चलते हैं। अगर मैं बचपन की बात करूं तो बचपन से ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता है। दो आई हैव अ साइंस बैकग्राउंड, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि बेसिक एजुकेशन सबको मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 2-3 बेसिक काम कर लिया, कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट्स अगर आप समझ लिए, कुछ साइबर क्राइम्स और जो जनरल क्राइम्स होते हैं उसके बारे में समझ गए, आप एज अ कॉमन सिटीजन सबसे ज्यादा पावरफुल हो। आपको पता भी नहीं है, आपको लगता होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या ये जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं। नहीं, उनके अलग पावर्स होते हैं, बट उनमें बहुत से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। यस, कॉमन पीपल होने का सबसे अच्छा जो एक मतलब ये एडवांटेज ये है कि हमारे पास एज सच कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। ऑफ कोर्स डजंट मीन कि हम लॉ ब्रेक करेंगे, बट वी हैव द मोस्ट पावर, राइट? तो अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, अपने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उनको समझे, बेसिक क्राइम्स को समझे, सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक हफ्ता लगा के, फॉर योर ओन सेक। आई एम नॉट सेइंग कि खाली सुशांत जी के लिए, सुशांत जी के लिए करे तो बहुत पुण्य वाली काम है, नहीं कर सकते हो एटलीस्ट अपने लिए करो, क्योंकि नॉलेज जो है लाइफ लॉन्ग काम आएगी, राइट? नॉलेज कभी खत्म वो नहीं होता, बेकार नहीं जाता। तो आप अगर अपने सिस्टम कैसे काम करता है वो समझ गए, रूल बुक्स क्या है वो समझ गए, कैसे अप्रोच करें वो समझ गए, पब्लिक डोमेन में फ्री में गूगल में अवेलेबल है। तो अगर आपने नॉलेज को ले लिया, थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, तो ट्रस्ट मी, हेजिटेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। Then approaching authority, even approaching honorable prime minister, okay, approaching CBI in a proper manner, channelized manner, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ओके ये प्रोसेस होता है, I have to follow this process। पास वो नॉलेज नहीं है, इसलिए भी कई बार आप डरते हो, अरे अगर इफ एंड बट्स, कि अगर कुछ बुरा हो गया, अगर कुछ हो गया, तो ये इफ एंड बट्स खत्म हो जाएंगे। तो अपने नॉलेज लेवल पे काम करो। सुशांत जी भी तो यही सिखाते थे कि हमेशा एक्सप्लोर करो, ट्राई एंड फेल एंड लर्न, ट्राई एंड फेल एंड लर्न, ठीक है? तो आप एकदम डरो मत, ठीक है? नॉलेज गेन करते रहो, ऐसे भी कोर्स ऑफ द लाइफ के लिए वो अच्छा है। फिर आपके अंदर का देखना जो फियर है ना, 90% क्या 100% भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर ग्राउंड में उतर के जस्टिस सीख करना, ऑथोरिटीज को अप्रोच करना विल बी अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर यू। हर चीजों का सिस्टम होता है, ठीक है? तो ये चीज है, आप ये चीज करो। इवन सुशांत सर विल फील हैप्पी, क्योंकि वो भी कॉस्मोस से हमें देख रहे हैं, जब कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह का जस्टिस है। और पता है मैं क्या सोचता हूँ, मैं चलो आप लोगों को एक परिवार की तरह मानता हूँ, तो एक सीक्रेट रिवील करता हूँ। मैं और एक चीज पे हूँ, मिशन पे, और वो बहुत सारे लोग हम में से होंगे। आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू प्रॉस्पर, आई वॉन्ट टू रीच अचीव न्यू हाइट्स इन लाइफ, सो दैट कल को कोई अगर पूछे कि इसके पीछे रीजन कौन है, तो मैं कह सकूं कि मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स और सुशांत सिंह सर है, ठीक है? सुशांत सिंह राजपूत सर है। तो ये चीज,
ये भी तो एक तरह का जस्टिस होगा। इट इज नॉट ओनली कि बॉयकॉट कर दे बॉलीवुड को, इट इज ऑल्सो कि उनकी लेगेसी और वो इमॉर्टल रहे इन जनरेशंस टू कम। तो ये भी एक रिक्वेस्ट था जो मुझे ऐड करना था। अपने नॉलेज पे काम करो, सिस्टम को समझो, आप भी अथॉरिटीज को अप्रोच कर पाओगे, आप भी सब कुछ कर पाओगे। Rudraba, this monologue is going to be clipped and posted. You know that, right? So this is amazing. I just disagree. Dinesh Kumar ji has exactly summarized आपका जो भी है. He just summarized amazingly whatever you said. I just differ. I want you to come and debate on this with me if you want. But please, you said that you have low stakes. There is nothing to lose. So you want to be more active in this than everybody else who is married, who has kids and all that. That is not true. Your life is just as precious as anybody else's. So please, that is the only thing I will debate on. Okay, I will now shut up and get out. And there are a lot of people who want to talk. True. दिनेश जी गुड इवनिंग। लेट आने के लिए जस्ट मैं ज्वाइन किया, बहुत सारे ससारियन है पीछे बैक स्टेज। सो आज का जो था वो कैसे आपका है, मतलब ऑन ग्राउंड था या ऐसे ही जस्ट आप लोग किस तरह से दिशा का जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू किया आप लोगों ने? गुड इवनिंग भावना जी। भावना जी, चेन्नई साइड में अभी यूजुअली स्टिल देयर इज एन लॉकडाउन and keeping many things in mind, we thought it is better कि like individually हम लोग activity perform करें, because it's like protest को करने के लिए या फिर campaign को करने के लिए हमारा healthy होना और हमारे परिवार को देखना भी बहुत जरूरी है। जिनके पास possibility है, जिनके पास option है, they will try, they are doing it। और जिनके पास ऑप्शन नहीं है तो उनके पास ये वाला भी एक ऑप्शन है कि लाइक इंडिविजुअली भी हम चीजें करके उसको हम सोशल प्लेटफॉर्म में रख के वी कैन ऑल्सो लाइक मेक दिस इन लार्ज नंबर एंड विद द हेल्प ऑफ अवर डिजिटल like power, we can spread this over and also like create some kind of pressure or some kind of like chain so that everyone will remember this thing and they will be able to like come up with this kind of ideas in future too. So अभी हमने देखा जैसे कि प्रिया जी हैं, प्रिया जी she was like actually she was working, she's a nurse, तो उन्होंने even अपने वर्क टाइम में इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, wherein like if you see her like she have decorated herself as if and also like she have used a black color of dress in a very artistic manner and she have like kept her views about Disha ji and what would have happened there. तो उस तरीके से like रूही जी हैं यहाँ पे, चित्रा जी हैं जो कि even they are family, they are like housemakers, homemakers and but still like they have like taken up time, उन्होंने अपने family वालों को भी involve करके इस activity को perform किया है। Okay, दिनेश, सिर्फ मेरा मानना ये है कि सिर्फ आप बोलिए, कंटिन्यू। नहीं, मेरा मानना ये है कि ऑलवेज इट्स नॉट अबाउट क्राउड, इट्स अबाउट द वर्क, द इम्पैक्ट, किस टाइप से हम चीज कर रहे हैं। हाँ, ये सच बात है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो 100% उसके लिए क्राउड की जरूरत है, ठीक है, लेकिन देर आर बहुत बार कुछ समय ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अभी जैसे अभी का टाइम है, कोविड का टाइम है, जहाँ पे क्राउड इकट्ठा करना सही बात नहीं है इवन फॉर एसएसआरियंस, क्योंकि एसएसआरियन वो भी तो हमारे साथ वाले वॉरियर्स है, वो भी तो वन ऑफ अवर फैमिली मेंबर है, तो उनकी हेल्थ भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस तरीके से हम अकेले भी इंडिविजुअली भी कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करके उन्हें आके लोगों के सामने रख सकते हैं और दूसरों को दिखा सकते हैं कि स्टिल हमारे मन में एसएसआर भाई के लिए, दिशा बहन के लिए वो पूरा प्यार है और हम पूरे जी जान से लड़े हैं उनके जस्टिस के लिए और उनके मूवमेंट में। और जब तक आवाज उठाते रहेंगे, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता और जब हमें ऑप्शंस मिलेंगे, हम आगे आएंगे, हम रोड पे आएंगे, हम प्रेशर क्रिएट करेंगे।
अच्छा, तो आज तो दिशा का है, मगर हमारे जो कमिंग 14 के प्लान्स हैं वो थोड़ा बताएंगे कि हम लोग ऑन ग्राउंड करेंगे या डिजिटल ही हम लोग करेंगे? मैम ऑन 14th लाइक हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं। देखिए डिजिटल तो हमारे फैमिली वॉरियर्स, हमारे लाइक फैमिली मेंबर्स कर तो रहे हैं, जो हमारे बाकी के वॉरियर्स है जो जी। और स्टिल देयर इज ऑप्शन, देयर आर सम ऑफ द वॉरियर्स जो कि आके दे आर रेडी टू कम ऑन द ग्राउंड, जिन्हें पॉसिबल वेज मिल गए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक पॉसिबल वे मिल गया है, क्योंकि दिल्ली में अभी काफी हद तक लॉकडाउन को सीमित जो उसकी सीमा है उसको काफी हद तक बढ़ा दिया गया है, आई मीन कम कर दिया गया है, जिससे कि हमें ऑप्शन या चांस मिल रहा है कि हम घर से बाहर आ सकेंगे। उस तरीके से लाइक और भी कुछ वॉरियर्स है जिनको फैमिली से परमिशन मिल गई है कि चलो ठीक है आप लोग आके 1 और 2 आवर्स के लिए ही आइए। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ वॉरियर्स हैं जो दिल्ली में अभी परफॉर्म करने वाले हैं, उनमें से बहुत से वॉरियर्स के पेरेंट्स, हस्बैंड, उनके लाइक भाई बहन, मम्मी पापा, दे आर टेलिंग कि लाइक आप लोग आके जाओ, आप लोग आके 14th को मिस मत करो। सारे प्रिकॉशंस को, जैसे कोविड के लिए सारे प्रिकॉशंस यूज किए जाते हैं, वो सब यूज करके आप लोग सेफली जाओ और लाइक सुशांत भाई के लिए आवाज उठा के आओ। मेरा भी ये मानना है दिनेश जी की एक मन से है कि वो दिन वापस नहीं आएगा दोबारा, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है एसएसआरियंस के लिए, तो उस दिन ऑन ग्राउंड हमें जरूर जाना चाहिए। ट्रू। तो इवन आपको एक इंसिडेंस बताऊंगा। हाँ जी, सबको बताइए, बिकॉज जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर दिल्ली के आसपास है तो वो आ सके। जी बिल्कुल, बिकॉज दिल्ली में तो अभी लाइक लॉकडाउन हट गया है काफी हद तक, तो अगर किसी को लगता है कि उन्हें आके पार्टिसिपेट करना चाहिए एसएसआर भाई के लाइक इस मूवमेंट में, सो यस प्लीज आइए। एंड हमारे आपको एक इंस्टेंस बोलना चाहूंगा। आई थिंक मैं एक एसएसआरियन से बात कर रहा था, मैं उनका नाम नहीं रिवील करना चाहूंगा। मैं एक एसएसआरियन से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि भाई आके यार कुछ करना है, लेकिन क्या करे, लाइक मैं बाहर तो जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि करीब करीब जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था मैं घर में ही था। तो उन्होंने पूछा कि भाई लाइक आप लोग के घर पे खाना कौन बनाता है? मैंने बोला मम्मी। तो सब्जी वगैरह, दूध पानी वगैरह कौन लेके आता है? तो मैंने बोला लाइक दूध के लिए दूध वाले भैया आते हैं, और जो ग्रोसरीज है उसके लिए लाइक स्टोर है, जनरल स्टोर है, और वो वाले भैया आते हैं। तो पूछते कि यार उनको क्यों नहीं कोविड होता? मतलब उन्होंने मेरे को एक पिन पॉइंट वे में पूछा, तो उनको क्यों नहीं कोविड हुआ, वो लोग भी तो बाहर है। तो मैंने बोला शायद वो लोग प्रिकॉशंस यूज करते होंगे, मास्क प्रॉपर्ली यूज कर रहे होंगे, अपने आप को सैनिटाइज कर रहे होंगे। तो उन्होंने बोला भाई यही चीज हम भी तो करके उतर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आई थिंक लाइक और उस दिन से हम लोग भी बाहर उतरे हैं। हाँ जी, वही बात है कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, मेरे ख्याल से यश जी भी करेंगे कि हमें वो दिन को मिस नहीं करना चाहिए। जो ऑन ग्राउंड हम लोग कर सकते हैं वो हम डिजिटल तो कर ही रहे हैं, मगर ऑन ग्राउंड रहना हमारा बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ लेस रहे या मोर रहे, इम्पैक्ट आना चाहिए, जैसा आपने इससे पहले कहा। तो मैं चाहती थी कि आप ये जरूर बताएं कि अगर आप रिवील नहीं करना चाहते हैं वो अलग बात है, कि किस प्लेस पे आना है, कहाँ आना है, जो हमें देख रहे हैं, और डेली आप बताइए कि किस प्लेस पे और कितने बजे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, वो या अपना अकाउंट या जो भी आप, जिससे लोग आपको अप्रोच कर सके। जी डेफिनेटली, लाइक जो प्लेस और टाइमिंग्स वगैरह है डेफिनेटली वो मैं लाइक वो रिवील करेंगे हम लोग, बिकॉज ये आके हम सबका मूवमेंट है। ओके, सो लाइक अभी आके एक्चुअली हमने आके 4-5 एक्टिविटीज का प्लान करके रखा हुआ था एज अ टीम। सो उसमें ऑलमोस्ट सभी दिल्ली के वॉरियर्स हैं, जिनके सबके बहुत सारे वॉरियर्स की सजेशंस है। लेकिन अभी चीज क्या हुआ था कि बिकॉज ऑफ कोविड, फॉर एग्जांपल हमने पूजा परफॉर्म करनी है मॉर्निंग में, तो पूजा के लिए अब दिल्ली में वी आर एबल, हमने एक टेम्पल थिंक करा है, लेकिन अभी भी प्रॉपर परमिशंस नहीं मिल रही हैं। तो लाइकवाइज पूजा है उसका प्रॉपर हमारे को ये नहीं मिला। हमारे को आके लाइक और सॉरी ओल्ड एज होम का हमने एक्टिविटी रखा है वेयर वी विल बी डूइंग डोनेशन। तो उसका अभी हमारे लिए जगह आज ही कंफर्म हुई है, बट चीजें वगैरह अभी प्रॉपरली कंफर्म नहीं है। मैक्सिमम 1-2 दिन और लाइक सारी चीजें सबको जिस तरह से अभी हमने बताया था, तो सारे इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि सब लोग आके ज्वाइन कर सके
जो जो पॉसिबल है वो डेफिनेटली आके ज्वाइन कर सके। अगर जिन्हें आने में मुश्किल है, लाइक दे कैन रीच अस और एनीवन फ्रॉम द दिल्ली टीम और दिल्ली वॉरियर्स, बिकॉज सब वी आर फैमिली। किसी से भी आप पूछोगे तो लाइक दे विल बी एबल टू गाइड यू अप। एंड हमने एक एक्टिविटी है जिसमें हमने एनिमल्स विच इंक्लूड्स लैंड, वाटर, स्काई, तो उनको भी लाइक हमने फूड डोनेट करने के लिए हमने मन में बनाया है। और वो एक ऐसी एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल काउ फीडिंग काउ एंड मिल्क फॉर डॉग्स। तो उसमें क्या है कि हम लोग आके जो हमारे पपीज हैं, डॉग्स हैं, उनको हम इंडिविजुअली अपने स्ट्रीट में भी हम आके वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। और लाइक फीडिंग काउ है वो हम अपने स्ट्रीट या अपने नियर बाय एरिया में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और फीडिंग फिश का ऐसे है कि लाइक जो वॉरियर्स जिनका घर आके लेक या इसके रिवर के बाजू में है, लाइक दे कैन यूटिलाइज दैट ऑप्शन, और पॉन्ड्स है उन दे कैन यूटिलाइज दैट ऑप्शन एंड दे कैन परफॉर्म दैट एक्टिविटी देयर। सो डेफिनेटली जैसे ही लोकेशंस कंफर्म हो जाएगी वी विल लाइक कम अप विद दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। डेफिनेटली ये जरूर आपने बहुत राइट बात बोली दिनेश जी कि अगर हम लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे, दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो हम ये सब चीजें अपनी प्लेस, नियरेस्ट प्लेस पे कर सकते हैं। जो अभी आपने बताया वो भी टच होगा डायरेक्ट सुशांत के लिए, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आ पाएंगे वो अपने प्लेस पे भी कर सकते हैं। तो अभी रुद्रा भी इधर हैं या वो चले गए हैं? रुद्रा भा और आप रुद्रा शायद नहीं है। हाँ हैगा, हैंगिश रुद्रा है। गुड इवनिंग रुद्रा भा। या एक्चुअली मैं इसलिए आया था कि किसी को शायद मुझसे कुछ सवाल पूछना था, तो मैंने अभी कमेंट में देखा था तो मैं आ गया, सोचा कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ये चीज है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन रखा हुआ है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, अगर किसी ने किसी को पास ऑन किया है। चैट में आपको यश जी कुछ दिख रहा है, किसने क्वेश्चन किया है शायद इनके लिए, रुद्रा भा के लिए? रुद्रा भा क्वेश्चन क्या है वो? मुझे नहीं पता। चलो जब तक आप क्वेश्चन देखते हैं, लाइव में भी ज्वाइन किया था, हर्ष करके कोई थे, तो उनको कुछ पूछना था। कोई नहीं। ओके, एक चीज याद आ गया मुझे, हर्ष से याद आ गया, जो होता अच्छे के लिए होता है। हाँ, मैं किस म्यूजिक वो गाना सुनाने वाला था, तो वो भी मैं भूल गया था, तो लगे तो गाना सुना देता हूँ अगर सुनाइए प्लीज। हाँ जी ठीक है। हाँ, किस टाइप के सॉन्ग आपको पसंद, मतलब आप लोगों को जनरली पसंद है? लाइक एक वो ले लेते पहले, फिर उस हिसाब से सॉन्ग सुना देते हैं। किस टाइप का सॉन्ग आप सुशांत के लिए स्पेशली या दिशा के लिए, या फिर कुछ भी सॉन्ग? ठीक है, तो मैं एक सॉन्ग गाता रहता हूँ, तो ऐसे जब मतलब ऐसा नहीं है एग्जैक्ट कोई सॉन्ग की फरमाइश, तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो कि मैं एसएसआरियंस को डेडिकेट करके गाता रहता हूँ बहुत बार, तो मैं वही चीज सुना देता हूँ। सूफी सॉन्ग है कैलाश खेर जी का, वो प्रीत की लत, तो मैं वो गुनगुनाने चाहता हूँ अभी। ठीक है, प्रीत की लत कैलाश खेर जी का है, सूफी सॉन्ग। तो शैल आई कंटिन्यू? यस प्लीज। या प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपनी पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस लाचार फिरूं मैं, हरी मैद हरी हरी मैं दिल हरी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में
कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई रे, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। प्यारा सॉन्ग है रुद्राभा, आपने बहुत ही सिचुएशन को देख के बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया जिससे थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग होने लगी। और रुद्राभा मैंने आपके लिए बहुत कुछ सुना है, जैसे दिनेश सर जो हैं वो तो हमारे हैं ही है, एसएस वॉरियर में सबसे ऊपर हैं, बट आप क्या, मैंने सुना है कि आप पॉडकास्ट में भी कुछ कर रहे हैं और सुशांत के लिए भी आपने कुछ बहुत कुछ लिखा है, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे। बिल्कुल। पॉडकास्टिंग मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसमें आप अपने व्यूज को तो शेयर कर ही पाते हैं, और वो मेरे को ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है क्योंकि, और वो इसलिए भी मैंने पॉडकास्टिंग जो है सुशांत जी को ही डेडिकेट करके पहले एपिसोड को शुरू किया हुआ था, जो वो चलाते थे कि लिविंग माय ड्रीम्स एंड लविंग माय ड्रीम्स, कि वो जो 50 ड्रीम्स का लिस्ट बनाते थे और उसको फिर अचीव करके दिखाते थे। तो वहां से वो जर्नी जो है शुरुआत हुई थी। और इसके पीछे और एक कारण ये भी है कि हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने जो भी लड़ने के तरीके हैं, मुझे लगा कि उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि हर किसी का अपना अपना टैलेंट है, ठीक है। कोई ग्राउंड में उतरता है, कोई लिखता है, कोई गाता है, कोई गुनगुनाता है, कोई पोएम लिखता है। जैसे यहाँ पे जो सिस्टर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा पोएम लिखा था कि हो सकता है मुझे वो लैंग्वेज ना समझ में आई हो, लेकिन वो भावना जो है वो दिल को टच करती है। तो क्या होता है कि इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला, जब आप अच्छा काम करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है, और अगर आप यही अच्छा काम सुशांत जी को डेडिकेट करके करेंगे तो ये जो हमारे बहुत से लोग अभी भी में, वो हम ऐसे सारियन से हम लड़ रहे हैं तो हमको हमारी बड़ी है सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, जिया खान, ये सारे लोग, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि जिनके लाइफ में एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं रखते हैं, बोलना नहीं चाहिए मुझे इससे, लेकिन ये फैक्ट है। सुशांत सिंह राजपूत जी, मतलब उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है, एज इफ उनको वो पर्सनल लॉस वाली फीलिंग नहीं होती है जैसे हमें होती है। तो जब वो चीजें मैं लिखता हूँ कि आर्टिकल्स हो गए, जब वो पॉडकास्ट करता हूँ तो लोगों को फील होता है कि नहीं, ये सुशांत जी जो गए हैं वो कोई सेलिब्रिटी नहीं गए हैं, वो हमारे जैसे एक आम इंसान गए हैं। तो उससे और जो है लोगों तक अवेयरनेस पहुंचती है। ये आर्टिकल लिखते होंगे तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको डाइवर्सिफाई करें। वो भी एक लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई के बहुत सारे फेसेट और एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ग्राउंड में उतरना इज अ पार्ट, ट्विटर में ट्वीट करना इज अ पार्ट, कंटेंट क्रिएट करना इंस्टाग्राम में इज अ पार्ट, और अगर आप लिख रहे हैं, गुनगुना रहे हैं तो वो भी एक हिस्सा है। तो इसीलिए ये सारी चीजें करता रहता हूँ कि अवेयरनेस फैले और भी लोग जुड़े। मैम आप म्यूट पे हैं, मैम आप म्यूट हैं। हाँ जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया रुद्राभा। मैं पहले दिनेश जी के थ्रू जानती थी, बट अब इंडिविजुअली आपको जानने लग गए हैं सब। तो रुद्राभा, जो आपने सुशांत के बारे में जो भी लिखा है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से रीड किया, मैंने फॉरवर्ड भी किया। तो उसमें जो उनके बारे में आपने लिखा है वो तो लाइक ऐसा था कि शायद वो विकिपीडिया और भी जगह पे लोग उसको नहीं लिख पाए जो आपने करके दिखाया। क्या थोड़ा सा वो आप एक्सप्लेन करेंगे कि वो चीज क्या है, ताकि लोगों को देखें लोग जाके उन चीज। बिल्कुल। इसमें क्या है कि मैंने ब्लॉग पहली बात क्या लिखा था वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर वो कैसे वो उस चीज को देख सकते हैं। इवन मैं इस चीज पे विश्वास रखता हूँ कि 2 चीजें, एक कि लोग खुद भी करें, और मुझे बहुत खुशी होती है देखते हुए कि लोग, मैं जो भी कर रहा हूँ, अगर जितना भी कर रहा हूँ, तो उस चीज को, पहला कि मैंने क्या लिखा था, तो उसमें पहले मैंने एकदम फैक्चुअल और ऑथेंटिक चीजें दी थी कि सुशांत जी कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से, और फिर उसके बावजूद भी, स्ट्रगल्स को देखने के बावजूद भी अपने आपको प्योर रखते हुए, मतलब विदाउट एनी करप्शन एंड कंटामिनेशन, वो क्या क्या अचीव किए। एंड देन मैंने ये एक्सप्लेन किया कि क्यों हमें फिर आवाज उठानी चाहिए, जो उनके साथ ऐसा हुआ, दिशा जी के साथ जो हुआ, क्यों आवाज उठानी चाहिए। तो ये मैंने अपना जो मेरा नाम है IM रुद्राभा, तो उसके आगे IM लगा देंगे, तो imrudrabha.blogspot.com, या आप रुद्राभा मुखर्जी ऐसे गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब।
तो ये एक चीज है। तो ये हो गया जो एक ब्लॉगर वाले में लिखा था। फिर है यूथ की आवाज। तो मैंने ये भी चीज देखा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया। कई बार क्या होता है, आपके जो शत्रु होते हैं वो आपका टीचर का काम करते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि अपने ओपोनेंट से सीखो और उससे भी बढ़िया करने की कोशिश करो। तो मैंने देखा बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि मे बी पीआरस कह लीजिए, या मे बी वो लोग जो सुशांत जी को पसंद नहीं करते हैं तो हाइपर एक्टिव है, वहाँ पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो मैंने उस प्लेटफॉर्म में गया, जैसे youthkiawaz.com करके कोई भी जाके लिख सकता है। तो वहां पे गया और सुशांत जी के बारे में कि क्या यूथ सीख सकते हैं, जहां पे एक तरफ गलत एलिगेशन लगा के ड्रग वाला एंगल देके उनके इमेज को सैबोटाज किया जा रहा है, मैंने लिखा आर्टिकल कि टॉप 5 चीजें जो कि सीख सकते हैं मतलब सारे यूथ। तो वो 5 चीजों को मैंने मेंशन किया। और हमारी यूथ जो है थोड़ी साइंस वाली है, तो वो बड़े फैक्ट और प्रूफ मांगती है। तो हर किसी का मैंने प्रूफ भी उसके साथ वो किया कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सुशांत जी से ये 5 चीजें सीखनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि नॉट ओनली अवेयरनेस बढ़ी, बल्कि उस प्लेटफॉर्म में अब सुशांत जी के चाहने वाले भी और ज्यादा आ गए हैं। ये हुई दूसरी चीज। अब बात है कि आप लोग कैसे कर सकते हो। तो इट्स लाइक बहुत सिंपल सा है कि पहली बात तो मैं वो 5 पॉइंट्स पढ़ के सुना देना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी शायद वो सुन के अच्छा लगेगा। तो मैं वो 5 पॉइंट्स फटाफट बता देता हूँ। एक सेकेंड बस, ये आर्टिकल मेरे सामने ही है, तो जस्ट अ मिनट, बस 1 सेकेंड में खुलने वाला है कि आर्टिकल की हेडिंग ये थी, जस्ट अ मिनट, जैसे कि आपको भी सर्च करने में भी आसानी हो जाए, जल्दी से खुल जाए। हाँ, ओपिनियन दिया था। और एक चीज, जब भी आप लिख रहे तो ओपिनियन लिख दीजिएगा, इससे आप लीगल किसी भी चीज में नहीं फंसेंगे। तो ओपिनियन, 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स यूथ कैन लर्न फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत। तो उसमें मैंने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत पहली बात तो क्या थे, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए कि द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस नाउ प्लस एक्साइटमेंट। ठीक है, कि इवन आफ्टर 1 ईयर आई एम एक्साइटेड अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू विन दिस बैटल ऑफ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान जी, and I'm living in the at the present and I'm excited about it. दूसरा, always stay humble even after achieving great heights. अगर आपको पता हो, और यही चीज मुझे, इसलिए मैं दिनेश जी का एक तरीके से मैं भाई बोलने में मुझे प्राउड फील होता है। आई टेक प्राइड इन इट एंड वो मुझे इंस्पायर भी करते हैं। हर वो इंसान इंस्पायर करते हैं जो सुशांत जी के उस चीज को अपने अंदर मतलब मुझे झलकती है। दिनेश जी ने एक चीज अभी बोली कि 14 तारीख को वो प्लान कर रहे हैं कि ओल्ड एज होम में भी जाएंगे। और अगर आपको याद हो, सुशांत जी भी जो हैं वो ओल्ड एज होम में जाके लोगों का, माताओं की, सबकी सेवा करते थे। तो ये चीज कि इवन इतने अचीव करने के बाद भी चैरिटी के लिए नहीं गए थे, शो ऑफ के लिए नहीं गए, दिल से गए थे। अगर आपने देखा होगा किस तरीके से वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वो भी एक चीज है। तो ऑलवेज स्टे हम्बल इवन आफ्टर अचीविंग ग्रेट हाइट्स इन लाइफ। तीसरी चीज, बी अ पॉलीमैथ। आज के टाइम पे मैंने देखा हुआ कि अगर आप थोड़े से वर्सेटाइल नहीं हो अपने टैलेंट और चीजों को लेके, स्किल को लेके, तो आप सर्वाइव उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, थोड़ी दिक्कतें होंगी। ये भी सुशांत सिंह राजपूत जी ने बहुत अच्छे से किया था, बिकॉज ही वॉज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर, ही वॉज हेल लॉट ऑफ थिंग इन शॉर्ट। तो ये चीज है। तो फिर चौथा था कि ऑलवेज ड्रीम बिग एंड गिव योर बेस्ट टू अचीव। बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो देखा, वो खुद अपने मुंह से बात कहते थे कि वो नेगेटिव से आए थे, जीरो भी नहीं कहते, नेगेटिव से आए थे और क्या अचीव किए कि आज हम 1 साल भी हो गया फिर भी आज हम लड़े जा रहे हैं। तो ये चीज, ऑलवेज ड्रीम बिग एंड गिव योर बेस्ट टू अचीव। पांचवा, ऑलवेज बी अ गुड ह्यूमन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 100 बात की एक बात कि अगर आप सब कुछ अचीव कर लिए, अगर अच्छे इंसान नहीं हो तो सारा चीज होकर भी बेकार है। तो अगेन क्या कहते हैं, ये चीजें मैंने लिखी। और अगेन उसके बाद उसमें खासकर बॉम्बे हाई कोर्ट के जज का वो कोटेशन मैंने डाला हुआ था, जिसमें जज ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो इनोसेंट व्यक्ति थे। अगर आपको याद हो, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला हुआ था जो जज थे, तो उस लिंक को बकायदे मैंने डाला हुआ था, सो दैट कि पीपल वो प्रूफ को पढ़े, उनकी आंखें खुले कि नहीं ये बंदा इमोशनल होकर बात नहीं कर रहा, फैक्चुअली कह रहा है। तो अगेन ये चीजें हो गई जो मैंने लिखी। ऑफ कोर्स ये बाकी लोग भी लिख सकते हैं, उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। देयर आर सम ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स फ्री में अवेलेबल है, medium.com है, यूथ की आवाज है, फिर आपका क्या कहते हैं ब्लॉगर है, वहां पे आप फ्री में जाके लिख सकते हैं। लिखिए, गलतियां करेंगे, सीखिए, क्योंकि यही सुशांत सिंह राजपूत सर सिखाते थे कि उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइन बोला हुआ था, जस्ट मैंने डायरी में नोट करके रखा हुआ है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोगों को काफी इंस्पायर करेगा। आप लोग शायद जानते भी होंगे उस लाइन को। कहाँ गया? हाँ,
लर्निंग न्यू थिंग्स एंड लर्निंग द सेम थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। हाँ, कि मतलब आप एक ही चीज को क्या कहते हैं, कोई भी नई चीज को सीख रहे हो और एक ही चीज को दूसरे तरीके से सीख रहे हो, इसमें फर्क होता है। और द मोर यू लर्न द लेस टाइम इट टेक्स टू लर्न मोर। तो आप इस तरीके से जब नए नए चीजों को सीखते रहते हैं तो आपको और भी नई चीजों सीखने में बहुत कम टाइम लगता है। इन शॉर्ट आप लोग भी पॉडकास्टिंग कर सकते हैं जिसमें अपने को, और हाँ, जैसे सुशांत सर हमेशा इससे से नफरत करते थे कि वो मीडियोकर सक्सेसेस जो है, कहते थे कि भैया आई वांट टू अचीव ग्रेट एक्सेलेंट फेलियर बट नॉट। लिए चीजों को लिखिए, पॉइंट्स को लिखिए, ग्रामरली करके प्लगइन आती है, अगर आपको लगता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं तो वो भी फ्री में ऑडिट हो जाती है। तो ये सारी चीजें कीजिए, क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, वी आर इन अ वॉर जोन। तो जहां पे सुशांत जी के खिलाफ अगर पॉडकास्ट बाकी लोग कर सकते हैं, सुशांत जी के खिलाफ मतलब बॉलीवुड को सपोर्ट करते हुए अगर कोई आर्टिकल लिख सकता है, तो हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों के पास भी एटलीस्ट फोन है, लैपटॉप हो ना हो, फोन है, इंटरनेट है, ठीक है। तो व्हाई नॉट वी आल्सो डू दैट, बिकॉज लेट मी टेल यू 90% चीजें, 95% चीजें फोन से ही हो जाती हैं आज के टाइम पे, राइट। इवन मैं भी 95% चीजें फोन से ही कर लेता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पेन इज द माइटर देन स्वॉर्ड। ग्राउंड पे उतर के लड़ना तो अपना एक है ही, और हमें इस तरीके से इंटरनेट में ऑमनी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसलिए पॉडकास्टिंग करता हूँ, जिनकी उनकी विचारधारा के बारे में बोलता हूँ, चीजें लिखता रहता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होगी कि बाकी लोग भी अगर यही सारी चीजें करें तो। रुद्रा जी, रुद्रभा, बहुत आपने बहुत ही ढंग से उसको एक्सप्लेन किया सबको, और हमारी नॉलेज को आगे बढ़ाया है। बहुत हमें जानने को मिला सुशांत जी के लिए। बट मैं आपसे ये चाहती हूँ कि एसएसआरएन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो आपने एक बार पहले भी बोला है मैसेज में। एसएसआरएन्स कौन है? हर वो इंसान जो सेल्फलेसली दूसरों के लिए सोचता है। दिनेश जी, am I audible? Yes. Yes. अच्छा, Yes. No. अच्छा, रुद्रा के, हाँ, I think कुछ नेटवर्क इशू है रुद्रभा जी के साइड में। हाँ जी, तो अब आपसे नहीं, कंटिन्यू मैं करते कह रहा हैं। हूँ कि मेरे नजर में एसएसआरएन हर वो इंसान है, एसएसआरएन हर वो इंसान है जो दूसरों के लिए सोचता है, अपने पहले दूसरों के बारे में सोचता है। हर वो इंसान एसएसआरएन है। और आपने कुछ ये भी कहा कि एसएसआरएन में कौन कौन आते हैं? सिर्फ डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, कौन कौन आते हैं जो आपने डिस्क्राइब किया? एक बार वो सेंटेंस सबके लिए अभी मोटिवेट करने के लिए बोल दीजिए। मैंने पॉडकास्ट में ये भी बोला हुआ था, राइट। वो आपकी एसएसआरएन्स है कौन, राइट। ओके, मुझे याद आ गया। तो इसके ऊपर मैंने पॉडकास्ट एपिसोड बनाया था, इसमें बोला हुआ था कि एसएसआरएन्स में तरह तरह के लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर जो स्कूल जाता है, और आप सुन के हैरान हो जाओगे, ऐसे बच्चे भी हैं जो कि स्कूल में जा रहे हैं और प्रोफेशनल्स को पाइथन कोडिंग सिखा रहे, मशीन लर्निंग सिखा रहे। जी हाँ, तो ऐसे बच्चे भी हैं। हाउसवाइफ्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है। इंजीनियर्स में भी आईआईटीएंस भी हैं, सर्जन्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एडिटर्स हैं, लॉयर्स हैं, हर तरह के लोग हैं, ठीक है, जो कि मतलब इस कैंपेन में लड़ रहे हैं सेल्फलेसली। और वो भी किस चीज को सहते हुए, जो पीआर आके जो कह रहे हैं कि भला बुरा, कि तुम लोग बेवकूफ हो जो लड़ रहे हो, क्या मिल रहा है, तो उनके भी घर में किसी के साथ बुरा ना हो, उस चीज के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, मतलब सेल्फलेसली उस चीज को सहते हुए, ठीक है। अब बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं। ये सारी चीजें सेल्फलेसली कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये बातें कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, सुशांत जी के लिए ही सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, बाकी जो इनजस्टिस हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठा रहे। एसएसआरएन्स आर द पीपल जो कि कोरोना वायरस के टाइम पे हजारों लोगों की ये मदद किए, ब्लड डोनेट करके, पैसा डोनेट करके, प्लाज्मा डोनेट करके, हर तरीके से, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को डोनेट करके, राइट। और यही नहीं, जितने भी तरह के इनजस्टिस हुए सबके लिए आवाज उठाया, क्योंकि एसएसआरएन्स हैज द स्पाइन, हैज गॉट द स्पाइन। किस बात का? कि वो समझते हैं कि अगर सुशांत जी के साथ बुरा हुआ है तो किसी और के साथ भी अगर बुरा हुआ है तो हमें सबके लिए लड़नी है, क्योंकि यही लेगेसी सुशांत जी एसएसआरएन्स को देके गए हैं, जो वो बेवकूफ लोग नहीं समझ पाएंगे, जो या तो सेल्फिश है और या तो उनको ये एसएसआरएन्स को मतलब समझते हैं कि खाली बैठे हुए। हमारा खुद का काम है, जॉब है, करियर है, अपनी पर्सनल लाइफ है, एंड स्टिल विदाउट गेटिंग एनीथिंग। तो यही है एसएसआरएन्स। We are the unstoppable, we are the most powerful, and we are going to create the history. We already have created the history, and we are going to bring the change because we are the change.
वेरी नाइस। Absolutely, we are the change. मेरे को लगता है दिनेश जी और यश जी भी एग्री करेंगे, तो दिनेश जी आप और यश जी आप प्लीज कुछ बोलिए। First Dinesh ji, then I was. यश जी आप बोलिए। यश जी आपको we Okay. have to like listen to your. First of all, namaste Bhavana ji, and namaste and vanakkam to everyone. Amazing. Trust me, I was broke when I saw Priya and had some work at home, so I had to leave. But I was watching Priya's video. I don't know how to thank, but from the bottom of my heart, I thank Priya and the team and Dinesh brother and everyone. You guys, now this gentleman who spoke, even he spoke in Hindi, really hats off to him. He's absolutely right. A true SSRian, that's the message he's given. I'm so happy. From where this is all formed, from where this is all, who knows today Priya will come to voice out for Disha, for Sushant. Who knows Bhavana ji will come here? Who knows I will come here? Who created Dinesh to do this? It's God. It's Sushant. It is no one else. No, Varun did not go to Dinesh and say, you know what, Dinesh, come speak about Sushant. No, this is his creation. He's doing it for the love for Sushant. Priya did today a video for the love for Disha. Amazing, really. I am speechless, but I'm really happy and I am really thankful to you guys. I mean, this is the team, and like how Bhavana ji said, and how Rakshana ji said, how Varun bro said, you all should come every day and speak. This is your platform. No one will say don't come. No, this is your platform. You have the rights, and the work which you are doing, I can even salute you guys. That much of respect to you guys. So really, Dinesh bhai, very level. Go on. Thanks, Anna. Thank you so much. Thank you. You're welcome. You're welcome. Dinesh bro, thank you. Your time. जी नहीं बस अपना टाइम like it's like what to say like जितनी भी चीजें थी, जो सारी चीजें थी like वो डिस्कस हो गई हैं, लेकिन वही है like जब हम SSR भाई ने हम सब के अंदर एक अलग तरीके का फायर क्रिएट कर दिया है, और सही में like now it is different thing. अब तो रुकना नहीं है हमने इनजस्टिस के लिए, not just for SSR भाई, not just for Disha, not just for Zia, not just for Sridevi ma'am, for every innocent soul हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो फायर है, ये जो प्रेरणा है वो हमें मिल चुकी है. अब इससे पीछे हटने का तो कुछ है ही नहीं. और जैसे कि SSR भाई के डीड्स थे, उन चीजों को देख के, चीजों को अपनाने के बाद अब तो ऐसे लगता है कि लाइक मैं ही SSR हूँ, दिल में है सुशांत. और इसी तरीके के साथ हम सब SSRians आगे चलते हैं और आगे चलना चाहते हैं. और आज का जैसा हमने सोचा था कि दिशा मैम के लिए हमें आके कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, चीजें करनी चाहिए. तो इवन हमारे साथ यहाँ पे रूही मैम है, चित्रा जी हैं, इवन आरती जी थी, और आई एम नॉट श्योर आरती जी, निया, आर दे इन द बैक स्टेज और नॉट. तो अगर वो हो तो प्लीज उन्हें एक चांस दीजिए. लेट देम लाइक जो उन्होंने आज पूरा दिन स्पेंड करके जो उनके लिए पोएम्स और उनके लिए कोट्स कलेक्ट किए हैं, वो आके वो रख सकें. इसके साथ साथ मैं आपको एक इंसिडेंट बस बताना चाहता हूँ. आफ्टर दैट लाइक आवर वॉरियर्स कैन स्पीक. एक लड़की है, वॉरियर है. तो मैं CBI जब जाना था, हमने CBI ऑफिस जाना था, तो वो एक इंसिडेंस की बात थी. तो चलो मेरा और रुद्रबा का समझ आता है. तो हमने आके जब वो चीज डिस्कस की थी, तो हम जब बात कर रहे थे, तो लिटरली मैंने ही लाइक सबको मना किया था. ठीक है, बहुत सारे वॉरियर्स थे जो आना चाह रहे थे, जो अपना पार्टिसिपेशन देना चाह रहे थे इसमें, और मैम भी हैं जो इसको ज्वाइन करना चाह रही थी. लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशंस, इसके लिए हमने सोचा कि नहीं, ये वाला टाइम सही नहीं है, थोड़ी चीजें और बेटर हो जाए, सब आके वैक्सीनेशन वगैरह लगा ले तब, और थोड़ा वेव कोविड का स्लो डाउन हो जाए, तब हम चलेंगे, या तब आप सब लोग आइएगा करके. अभी के लिए हम लोग, क्योंकि लाइक वी आर डूइंग
फॉर SSR, यू आर डूइंग फॉर SSR. सो हम सब एक ही चीज के लिए कर रहे हैं. तो फिर एक लड़की है, उन्होंने मेरे को बोला, दिनेश, व्हेन यू कैन डू इट, सो व्हाई आई कांट. अगर तुम आके मास्क लगा के, तुम सैनिटाइजर लगा के, तुम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अगर तुम जा सकते हो, तो मैं भी जा सकती हूँ. मेरे को जो होगा, मेरे घर वाले हैं वो देखने के लिए. तो लाइक मैं आपके लिए नहीं आ रही, मैं सुशांत के लिए आ रही हूँ. तो लाइक आप मेरे को क्यों बोल रहे हो कि आप अभी मत आओ. फिर आई वाज जस्ट, कुछ बोल ही नहीं सकता था इसके आगे. तो ये उनका लव है, ये उनका डेडिकेशन है टुवर्ड्स SSR भाई. एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर गर्ल, लाइक शी इज अ स्मॉल गर्ल. तो उन्होंने क्या कहा कि लाइक भैया, लाइक उनका मैंने पहले कॉन्वर्जेशन सुना हुआ है. तो उनका बोलना क्या होता था कि लाइक अगर आप लोग हमारे को नहीं ले जाओगे, या अगर आप हमारे को मूवमेंट में जब प्रोटेस्ट होते हैं आप हमें नहीं बुलाओगे, कोई बात नहीं, तो मैं बस स्टैंड में जाके खड़े होके जो भी बसेस आएंगी, SSR भाई का पोस्टर लेके मैं सबको बताऊंगी कि SSR भाई के साथ क्या इंजस्टिस हुआ था. तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, कोविड टाइम में पुलिस वाले आके मेरे को अरेस्ट कर लेंगे, तो मैं उनसे पूछूंगी लाइक वो एक छोटी सी बच्ची को अरेस्ट करने आ गए, लेकिन इतने बड़े इंसान को, इतने बड़े लाइक हमारे भाई को लाइक इतने लोगों ने उनका कत्ल किया है, इतनी बेरहमी से मारा है, इतनी सारे लाइक प्रूफ सोशल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, और आप लोग उनका तो कुछ कर नहीं पा रहे. मुझ जैसी बच्ची को आप अगर अरेस्ट करके आप ले जाना चाहते हो तो आप ले जाइए करके. तो ये दोनों वही लड़कियां जो हमारे साथ CBI ऑफिस आई थी. तो ये चीज होती है, ये डेडिकेशन. इन चीजों के सामने लाइक हम लोग भी कुछ नहीं बोल पाए थे, इवन मैं भी कुछ नहीं बोल पाया, रुद्रबाजी भी कुछ नहीं बोल पाए थे. तो उन्होंने बोला लाइक इनका आना जरूरी है, क्योंकि ये जो जज्बा है ना, ये जज्बा जरूरी है. और मेरे को पता है कि जो अभी हमारे ये लाइव देख रहे हैं, इसमें बहुत सी ऐसी बहनें हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके मन में यही प्रेरणा है. तो आई एम श्योर लाइक बस कोविड खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सब उतरते हैं अब ग्राउंड में. अब लाइक SSR भाई के लिए हम लोग आगे आते हैं, लाइक ग्राउंड में उतर के वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं. क्योंकि अगर हम प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे तो जो अदर जो ऑफिसर्स हैं या जो अदर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बैठे हुए हैं, वो भी करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज वी SSRians knows द फैक्ट. हमें पता है कि वो क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं. मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, अभी हम लाइव में जो बैठे हैं उनको भी पता है, और जो ये लाइव सुन रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन नहीं कर पा रहे. पर अगर हम एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, अगर हम लोग रोड पे उतरेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो उनके सुपर बॉसेस हैं उनको बोलना पड़ेगा कि अब आप लोग आके ये केस को करो, अब हमारे को आके इस चीज का आंसर देना ही पड़ेगा. तो वो चीज हमारे को करवानी चाहिए, और वो चीज तभी बनेगी जब हम लोग ग्राउंड पे आएंगे. ग्राउंड पे आएंगे का ऐसा भी नहीं है कि आप लोग 500 लोग एक साथ आओगे तभी चीज बनेगी, नहीं. आप लोग 5-5, 10-10 लोग भी अगर एक एरिया से आप लोग अगर इकट्ठे हो जाओगे और आप लोग खड़े हो जाओगे और आप लोग डिमांड करोगे इन चीजों की जस्टिस के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. दिनेश जी, आपने जैसा बताया बहुत ही सही बोला. मुझे ये लगता है जिनका नाम अभी लिया, जिन गर्ल्स का आपने, वो यहाँ पे हैं अभी? अभी शायद नहीं है मैम, वो वेट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि स्कूल स्टूडेंट हैं और आके लाइक जॉब कर रही हैं, तो बट डेफिनेटली लाइक हमने वरुण जी को भी कहा हुआ था, उनसे भी प्रॉमिस किया था कि हम चारों एक दिन एक साथ आएंगे, और हमने वहाँ पे जो किया था, वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस अबाउट दैट. डेफिनेटली. और अभी कोई है जो प्रिया जी कुछ भी जो बोलना चाहते हैं, या वो बोल चुके हैं? अरे प्रिया जी ने तो लाइक इतने डेडिकेशन फुली लाइक ये किया था, मैं खुद हैरान था उनका लाइक चीजें देख के. और इवन रूही जी हैं, चित्रा जी हैं, जिन्होंने भी आके चीजें लिखी हुई हैं. तो यस प्लीज, हम प्रिया जी. Thank you so much, Dinesh ji. Thank you, Bhavna ji. Thank you, Dubai na. Thank you all.
I thought it won't be good, but you liked it all. And thank you. And I would request Dinesh ji to recite my poet in English, which I read it in Tamil. वो मैं करता हूँ, लेकिन प्रिया जी मैं एक सच बात बोलूं, मैं चाहता हूँ कि वो आप बोलो, क्योंकि ना उसमें जो आपके इमोशंस थे ना, दैट मैटर्स अ लॉट. देखो आपने अपने साइड से जो किया था, मेरे को लाइक मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो, लेकिन बट मैं चाहता हूँ कि वो आप करो, क्योंकि आपने जो टाइम देके उस चीज को लिखा था, उस चीज के अंदर जो फीलिंग्स लाई थी ना, दैट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट. तो क्रेडिट आप ही को मिलना चाहिए. You go with it. Okay, Dinesh ji, I'll do it in English, but I request Ruhi ji to read it in Hindi after me. So once I complete the session, I will request Ruhi ji to do it in Hindi. Sure. If our hosts allow. Yes, sure. This is a poet, Bhavna ma'am. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. Priya ji. Oh, killers who murdered me, didn't you even think that one who gave you birth is also a woman? Didn't your sister's face come in front of your eyes when you were about to kill me? When you touched me, didn't you feel your mother? When you removed my sari, didn't you remember sleeping on your mom's sari as cradle? When you pulled me from stairs, didn't you think of girls who are in your family? If one Disha dies, I'll reincarnate again as hundreds of Disha. Priya? Anna, so it was a translation and I don't know how far it is, but did up to my mark. Amazing. I have Dinesh sir,